right? So let us join our hands to chant Omkaram 3 times. All of you join your hands with us. Sai Ram. Okay. Sairam sir. This is the first class after our half yearly examination. Right, beta? So now you all are relaxed. Yes, First sir. of all, let us discuss the questions given in the Google form. है ना? So for this, I need to present my screen. There I'm going to print my screen. Who will be guiding me in between? Tell me. So that whether you can see my screen or not, you can tell me. Raghav Tiwari, yes, Raghav Tiwari. Raghav Tiwari, unmute yourself. Raghav, Yes, sir. beta. Now, what can you see on the screen? Google form. Very good. So, let us see. And you will be chatting with me, beta, है ना? This was question number 1. The function of the digestive juices present in the stomach is to break down. बोलो राघव. आंसर क्या होना चाहिए था? The right answer is The protein the in proteins in simpler substances. The protein substances. proteins into simpler substances. क्योंकि digestive Sir, I juices have जो taken fat. stomach में बात कर रहे हैं, है ना? The proteins into simpler substances. ठीक है बेटा? No doubt. Next question था हमारा. Which of the following is not necessary for photosynthesis? Oxygen. Oxygen. ऑक्सीजन तो रिलीज होता है. इसको The कहाँ होती है इसमें, है ना? The greatest amount of dilation of food Small takes place in intestine. the Small intestine. Small intestine. final In small intestine. small intestine. Sea and land breezes, they are caused by current Are caused by current setup in air due to convection. due to convection. Convention. Due to convection, है ना? In which method of transfer of heat do the particles travel from the hot to the cold portion? The convection. 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 Red litmus paper is dipped in a solution. What is the nature of the solution? Either acidic or neutral in nature. Natural. Neutral. ध्यान से देखो ध्यान से सुनो. Either acidic or natural in nature. अच्छा भैया बोल दिया ना. रेड लिटमस पेपर है, ये क्या करता है? बेस में ब्लू होता है और न्यूट्रल में तो अपना जैसा कलर ऐसा रहेगा. एसिड में कलर नहीं चेंज करेगा. रेड है तो या तो बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा. आंसर इज बेसिक, है ना? आइदर एसिडिक और न्यूट्रल. बेस में तो ब्लू हो जाएगा ना, बेस में ब्लू हो जाएगा. रेड लिटमस टर्न ब्लू इन द बेस. आइदर एसिडिक और न्यूट्रल. सॉल्यूशन इज आइदर एसिडिक और न्यूट्रल. जल्दी बोलो, कोई डाउट है? नो सर. No, sir. है ना? अगर बेस होगा बेटा तो रेड तो ब्लू हो जाएगा. क्या कर रहा है? इट रिमेन्स रेड. कलर हाँ बोलो डाउट.
हाँ डाउट बोलो। सर जो सर रेड लिटमस पेपर है सर, वो तो सर बेसिक होना चाहिए सर, क्योंकि जो रेड लिटमस पेपर होता है सर वो बेसिक न्यूट्रल। बेसिक सुनो सुनो, बेसिक कब होगा? जब रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा तब ना। जल्दी बोलो। यस सर। इन बेसिक सॉल्यूशन, इसमें क्या कह रहा है देखो तो, रेड लिटमस पेपर इज डिप्ड इन a solution, it remains red। ब्लू हुआ क्या? जल्दी बोलो। नो। नो, रेड ही रह गया ना, तो बेस तो है नहीं। अगर बेस होता तो ब्लू कलर का हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ? या तो एसिड है या न्यूट्रल है, तभी कलर चेंज नहीं होगा इसका। एसिड में जाएगा रेड रेड ही रहेगा, न्यूट्रल में भी रेड रेड ही रहेगा। तो आंसर इज आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। ठीक है, आगे देखो। प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू Stomata and leaf. stomata and leaf. Stomata and And leaf. Good. Stomata. By rubbing your palm, you transfer mechanical energy into which energy? Heat. Sir, heat. है ना? सर विच कलर Which color एग्जॉस्ट मिनिमम absorbs minimum radiation? वाइट। White. वाइट। White. सर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम सर, मैग्नीशियम Magnesium हाइड्रोक्साइड। Magnesium hydroxide. Okay. ठीक है बेटा। Anybody who could not get the score? सर मैंने किसी को स्कोर नहीं मिला? सर मेरे को सर न्यूट्रल और मिल गया सर। आई हैव गॉट। एक बोलो कोई पहले। हाँ सर मुझे सर न्यूट्रल और बेसिक का सर हर्ष वर्मा हैज गॉट द मार्क। हाँ बोलो बेटा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ बोलो। सर मेरे को सर न्यूट्रल और बेसिक का सर समझ में नहीं आ रहा है सर जो डाउट। सुनो न्यूट्रल, हाँ सुनो ना, तो पूरा सुनोगे तब ना बेटा, तो सुनो ध्यान से। न्यूट्रल में सुनोगे या नहीं सुनोगे पहले? यस सर। If the substance is neutral, then no color will change. खुद neutral है ना, natural taste, ठीक है। आराम से क्या डाउट है? उसमें हम दो लिटमस डालेंगे तो क्या कलर चेंज होगा? जल्दी बोलो। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। इट नहीं पॉसिबल। कभी कभी नेटवर्क का स्लो हो जाता है ना। राघव यस सर। ठीक हो जाएगा कुछ देर। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर, इज ब्रेक डाउन। In between it happens because of network problem. What can I do? यस सर। सही हो जाएगा बेटा अभी, है ना। So what happens? Sir, we have to start our new chapter. आपकी आवाज भी कट रही है। Your voice is also breaking. Sir, you are breaking. हाँ, your voice is also breaking. What should I do? हाँ बेटा, neutral substance. Sir, we have to start our neutral substance. In the beginning, I told you we will have a quick recap of the chapter which we have studied last time, right? That was weather, climate, and adaptation. And tomorrow we'll start new chapter, that is wind, storm, and cyclone. Got it? Yes. अभी आप देखा आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई और डाउट है? ये बता रहा था कि हमने हाँ अनवर विजुअल Yes sir, now visible. हाँ नाउ विजिबल। बेटा आज क्या हो रहा है? अभी इसके पहले क्लास में ले रहा था
उसमें तो मेरा गूगल फॉर्म में नहीं खुल रहा था, फॉर्म जल्दी खुल के भी गया। तो कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है बेटा, है ना? सही हो जाएगा। ओके ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस। अरे यार माइक क्यों खोल रहे हो माइक को? हर्ष बंद रखो। हाँ बेटा, राघव तिवारी, साईराम, राघव, लेफ्ट। talk to me. हाँ, now I think it should be clear बेटा। Sir, your Yes, sir. voice is Clear. breaking. राघव नहीं बेटा ना, अभी तो ठीक है हमारा वॉइस, है ना? Yes, sir. It is clear. है ना? आपको प्रॉब्लम होगी, मेरा फोटो आपको सही आ रहा है ना? My audio video is clear, then I think audio is also clear. Right? So first part we have discussed Google Form questions. In neutral solutions, color of Sir, your presentation is freeze and your video is also freeze. freeze हो गया. So what should I do? Yes, sir. I should leave and join again. Yes, sir. I also think that. है ना? Screen is not visible. Okay, my dear. Let me stop sharing first. Okay, now I've stopped sharing. Now can you hear me? Yes, sir. I am audible now. Good. Okay. So it's all good, beta. So I telling you, right? Neutral substance do not change the color of either blue litmus paper. आप अपना नेटवर्क चेक करो, ठीक है? You check your network बेटा। देखो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। Now your voice is breaking. Subhra joined. Now Subhra will tell me what is the problem, beta. Sir, everything is clear, but when you present, your screen starts to see. Okay, I'm not presenting, right? I'll present now. Okay, so any doubt about multiple choice questions? No, I think. No, sir. बेटा? No, sir. ठीक है बेटा. Now let us see descriptive questions. Okay. So here I am going to print my screen and I'll show you descriptive question paper. Descriptive question paper. And it is here, I think. Yeah. Yes. Now tell me, Shubhra, can you see the question, beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So देखो बेटा, हमें क्या ध्यान रखना है? ध्यान सुनो मेरी बात. One thing, I have to answer to the point. जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे जवाब देना है ना? यथा प्रश्नानि तथा उत्तराणि. जैसा प्रश्न वैसा उत्तर देना है. तो रीड द क्वेश्चन, लैंग्वेज देखो क्वेश्चन का, व्हाट इट इज आस्किंग, अकॉर्डिंगली वी हैव टू आंसर. Can I? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है. अरे आप लोगों ने आंसर लिख के दिया है ना, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी एक मॉडल आंसर तो सुन लो, क्या गलती आप करते हो नहीं करते हो ये बताना मैं चाह रहा हूँ. आंसर तो लिख ही दिए तुम लोग जो लिखना था. तो क्या आप चाहते हो कि जो गलतियां आप लोगों ने किए हो वैसे गलती करना चाहते हो हमेशा? No, sir. No, sir. करना चाहते हो तो वो सुन लो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? ताकि आगे अगर कोई टेस्ट हो तो अच्छे का आंसर लिखो. देखो बेटा, ये क्वेश्चन था, द टम्बलर्स यूज्ड टू सिप हॉट ड्रिंक्स आर नॉट मेड ऑफ मेटल्स. व्हाई? मेटल्स का क्यों नहीं बना Because होता? it becomes hot. When we touch it, we feel hot. Good conductors of heat. Yes, metals are good conductor of heat also.
know that metals are good conductor of heat. So when we put hot drinks in metal tumblers, the whole tumbler will become hot and it will be very difficult to hold it and sip it. To even पकड़ना touch मुश्किल हो it, जाएगा। it is difficult to even touch it. हाँ, that's it. ये मीनिंग क्लियर है। क्वेश्चन का आंसर एब्जॉर्ब करने की बात कब होगी? व्हेन इट विल बी गुड तभी एब्जॉर्ब करेगा ना, है ना बेटा? रेडिएंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, Sir, your रिफ्लेक्ट करता है। working. ऑप्शन से नहीं क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है और Sir, screen is not visible. Sir, screen is not visible. अरे यार आज नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, क्या कर Sir, screen is visible. Screen is visible clearly. It is ओके visible. बेटा, ठीक है। How can you say that lichens have a symbiotic relationship? We all know lichens are the example of symbiotic relationship. अब हमको एक्सप्लेन करना है कि कैसे, तो सीधा बताना, पहले बताना है symbiotic relationship is that in which two organisms Algae and fungus. हाँ, पहले बताओ उसमें in symbiotic relationship two living organisms live together and they share shelter and nutrients. And This relationship is called symbiosis. आप लिखो, बोला ना, आप आंसर लिखते हैं ना, क्या कमी रह गई वो बताना चाह रहा हूँ मैं, नहीं बताऊँ तो हम छोड़ देते हैं। लर्न द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द आंसर, वो सीख लो। हाउ कैन यू से दैट लिचेंस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? आधे बच्चों ने तो पता नहीं कहाँ से देख के कोई कॉपी कर दिया पूरा, क्योंकि आंसर वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा है कई बच्चों का। आप देख रहे हैं नेट से खोल के आंसर लिख दिया। ऐसे करने से क्या फायदा होगा? वर्ड्स जो होते हैं ना बेटे, हमारे वर्ड्स जो हम पढ़ते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो वर्ड मिलता है हमें आंसर में। नेट का वर्ड अलग ही रहता है, उसे उतार दिया पकड़ के पूरा। और क्योंकि सेम नेट से उतारा है तो कई बच्चों के सेम वर्ड टू वर्ड आंसर मिल रहा है, लाइन टू लाइन। समझना है ही नहीं, करना क्या है? अभी भी समझना नहीं चाहते तुम लोग, क्या करें बोलो? फिर डिस्कस करना, जल्दी बोलो बेटा। हेलो साई राम, हाँ, ये आंसर मत लिखो बेटा, डू नॉट राइट द आंसर, जस्ट तो लिखना ये है कि इन लिचेंस alga and fungus live together. Alga prepares food by the process of photosynthesis. Fungus provides shelter and water and nutrients. In this way, both help each other and both are benefited each other. So, this is an example of symbiotic relationship. बात वही है, थोड़ा घुमा कर लिखना सीखना आपको, है ना? अगर ये क्वेश्चन आता एक्सप्लेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बाय एन एग्जांपल ऑफ lichen, तो वही आंसर लिखते, उसे खाली से घुमा पूछ दिया गया। हाउ कैन यू से दैट lichen हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? बाहर घास काट रहा, उसका आवाज आ रही होगी, आपको आ रही है क्या? यस सर। हाँ बेटा बोल जाओ, काट रहा होगा, जो आवाज आ रहा है ना मत पूछो। अब देखो डिफाइन है, डिफाइन सिंगल सिंगल सेंटेंस में करना है। तो कई वाले तो इट से स्टार्ट करते हो, उसके पहले वाली लाइन देखते हो नहीं, लिख देते हो सीधे। Breaking. 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन लिखते हो, स्कोरिंग है।
the process of washing thoroughly the पर to remove dust, grease and dirt is It's called with water is called scouring. and dirt. Single sericulture, rearing of silkworm to get Working silk is silk. called sericulture. कोई कह रहा है ना, तो ऐसे डिफाइन करना है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में एक पैराग्राफ लिख रहा है इसके बारे में, डिफाइन लिखना है भाई, एक्सप्लेन नहीं करना है, डिफाइन लिखना है। डिफाइन क्या होता है? शॉर्ट में होता है, कंसाइज होता है डिफाइन। choosing best quality of parent. डिफाइन लिखा है, एक्सप्लेन नहीं लिखा हुआ है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आंसर लिखना चाहिए हमें, है ना। इसमें बोलो और कोई क्वेश्चन इसमें मैं एक्सप्लेन करूं जो आपको Sir, देखना मुश्किल लग रहा है? seventh. Sir, seven. Sir, fourth question. ओके, एक बार बोलो, चुप हो जाओ, मैं सुन लिया। 4 बोल रहे हो। 5 ब्रेड, 7 स्वीट, हाँ पहले 4 बता। Sir, 7. थोड़ी कम हो जाएगी आवाज इसकी, खिड़की मैंने बंद कर दी। देखो बेटा, इसमें आप बहुत बच्चों ने आंसर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 का, मगर किसी ने भी सलाइवा और उसमें प्रेजेंट अमाइलेज या टाइलिन का मेंशन नहीं किया अभी तक, जितने मैंने चेक किया है। तो आपको लिखना क्या था इसमें? व्हेन वी च्यू ब्रेड फॉर सम टाइम देन सलाइवा गेट्स मिक्स्ड अप। Saliva contains an enzyme amylase. This enzyme converts starch present in the bread into simple sugar, and that is why it tastes sweet. ऐसे लिखना था। अब सब बच्चे, आधे बच्चे हुए थे, मैं चेक किया इसमें it से स्टार्ट किया। it converts, अरे it मतलब what? Name the enzyme. enzyme का नाम भी तो लिखना चाहिए आपको। Sir, हाँ। sir, it breaks down starch in What? baked bread. What breaks? It मतलब what है? It का मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप? It का मतलब क्या है बताओ यहाँ पर? It तो प्रोनाउन है ना बेटा, तो किसके लिए यूज कर रहे हो बताओ यहाँ पर? ब्रेड के लिए यूज कर रहे हो? ब्रेड के लिए? सब ब्रेड खुद ब्रेक कर देता है। Yes, sir. अच्छा, ब्रेड खुद ही ब्रेक हो जाएगा। तो सलाइवा पहले मेंशन करोगे तब ना, आप लिखोगे ना व्हेन वी च्यू। Saliva is mixed. आप पूरा सुनो पूरी बात। जब लिखोगे व्हेन वी च्यू ब्रेड फॉर सम टाइम सलाइवा गेट्स मिक्स्ड विद द ब्रेड। अब बोले से तो बोले सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम व्हिच ब्रेक्स द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो आप स्टार्ट इट ब्रेक्स Starch in bread into simpler food. इट का मतलब क्या है यहाँ पर जो बताओ? तो सीधा नाम ही Sir, लिखो ना, ब्रेड। ब्रेड ब्रेक कर देगा अपने आप, तो चबाने की जरूरत क्या थी? बाहर प्लेट में ही हो जाना चाहिए था। अरे पहले मुंह में लिया तो सलाइवा मिक्स हुआ, उसमें सलाइवा में एक एंजाइम होता है, तो वो लिखोगे ना बेटा। पहले लिखना है सलाइवा मिक्स होता है उसमें। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम called amylase या टाइलिन, and this enzyme converts starch into simple sugar due to which the bread tastes sweet. तो आप वही इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था कि जो मेन पार्ट है छोड़ देते हो आप लोग। अब 7 में देखो, 7 में ध्यान से देखो, ABC 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में अलग अलग लिक्विड दिया हुआ है। अब तीनों में बारी बारी से, पहला क्वेश्चन नंबर ए में पहले हम ब्लू लिटमस पेपर तीनों में डाल रहे हैं, तो आपको लिखना है when blue litmus paper is dipped in, so in test tube number A it changes into red, क्योंकि ये एसिड है, Red. है ना। in B no change, in C no change, क्योंकि सोप सॉल्यूशन बेसिक होता है, बेस में ब्लू में चेंज नहीं होता,
और प्योर वाटर क्या न्यूट्रल है, न्यूट्रल में कलर चेंज नहीं होगा। प्योर वाटर है, देखो प्योर चिल वाटर है ये, टैप वाटर वगैरह कुछ नहीं, कुछ मिला हुआ नहीं। फिर रेड में डालेंगे तो when a piece of red litmus is dipped in solution number A, it will have no change. In B, it will change into blue because it is base, so basic. In C, no change in color. No change. अब डाल रहे हैं phenolphthalein. Phenolphthalein when it is put in No change. A, it remains colorless. In B, it will change to pink color because it is base in the system B. And in C, again it remains colorless. Sir, no color. समझ में आया? Anybody getting it? Yes, sir. कुछ नहीं बेटा, बिल्कुल आसान है ये। इसको याद होगा कि किसमें कलर क्या चेंज होता है, वो तुम बता देगा। और बोलो डाउट किसमें था? 10. 10 दो लिखना था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे देखो व्हेन वी सफर फ्रॉम एसिडिटी, इसको बोलते हैं इंडाइजेशन, है ना, ज्यादा खाना खा लिया तो पेट में दर्द हो गया, क्या करते हैं? एंड टेस्टिंग कर ले सकते थे आप, सॉइल ट्रीटमेंट ले Sir, सकते थे, injection sometimes do so much produces. ट्रीटमेंट ऑफ फैट ले सकते थे, कोई भी ले Milk सकते of थे। magnesia. हाँ बिल्कुल हम इसे लेते हैं व्हेन वी सफर फ्रॉम इंडाइजेशन। Calamine Sir, I solution. will give the answer. Sir, हाँ दो लिखना है, एक नहीं, आधे बच्चों ने एक ही लिखा है तो दूसरा लिखा ही नहीं है, तो 2.5 मार्क्स मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। दो लिखा है, Calamine then solution two- and milk of magnesia. अरे उससे क्या फर्क पड़ेगा, दो एग्जांपल देना है अलग सर अलग। एक तो एंड बाइट और एक Sir, can I एसिड। tell? हाँ sir, एक तो sir injection, sir injection sometimes, or the ascetic neutralizes by taking a tablet. हाँ दो एग्जांपल देना था इसमें, है ना। एक्सप्लेन टू Indigestion and ant bite. एंड बाइट और इंडाइजेशन एंड Sir, और एंड बाइट एंड सॉइल ट्रीटमेंट, ऐसा दे सकते हैं, sir, कोई भी दो। acid and neutralized. अरे भाई एग्जांपल देना डेली लाइफ से देना था, डेली लाइफ सिचुएशन से, डेली लाइफ में हम उसका यूज करते हैं, वो उसका एग्जांपल देना था, ठीक है। तो डेली लाइफ में कहाँ का यूज करते हैं, बुक में देखो आप, है बुक तुम्हारे पास, खोलो बुक, एंड में देखो, चैप्टर के एंड में देखो। Sir, can I tell? हाँ बोलो क्या करेगा, हेडिंग पर पढ़ो, हेडिंग पढ़ो। इंडाइजेशन, मैं खोलूं बुक क्या, इंडाइजेशन, एंट बाइट, सॉइल treatment. treatment Sir, of when we get bacteria. marks, Injection sometimes the stomach produces too much hydroxychloric Three-ways. acid called hyperplacidity, which causes injection. गुड, एक हो गया, दूसरा एग्जांपल और देना। Sir, when we get marks- Sir, the acidic is neutralized by taking a tablet containing calcium carbonate, aluminium or sodium hydroxide. हाँ वो तो उसका हो गया इंडाइजेशन में, ठीक है बेटा। और कोई डाउट है किसी में? ये No, क्वेश्चन sir. अभी तक चुके। हाँ है बेटा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज इन द स्टोमक, डाइजेस्ट प्रोटीन but does not damage stomach wall. Why? स्टोमक वॉल तो प्रोटीन का बना है, मसल का है, वो Sir, डैमेज there is नहीं a होता, layer that's लेकिन called mucus and it is very slippery layer. Our stomach has mucus which protects the wall of stomach from the hydrochloric acid. It is also very slippery. स्लिपरी होता है, म्यूकस का मतलब स्लिपरी होता है, तो स्लिपरी से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डजंट कम इनटू कांटेक्ट विद द स्टमक वॉल, इस तरह बचता है। इसका भी आंसर लिखना है आपको। अभी आपकी कॉपी चेक चल रही बेटा, है ना, 7th की रह गई है, बाकी सबके हो गया मेरे पास, आप लोगों का कॉपी करेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, तो थोड़ा सा बेटा डिस्कस, आप लोग अच्छे बच्चे हो, इट्स वेरी गुड क्लास,
लिटिल बिट लर्न, क्या करना है, राइट टू द पॉइंट। उसके लिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और कभी कभी ऐसा लगेगा अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, बट बिलीव मी, आप आंखें बंद करो और थोड़ी देर आप लंबी लंबी सांस लो, आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने बहुत थॉरली पढ़ा है, तो सब आपको आता है। सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, तो आपको लगता है अरे आपका आंसर कैसे होगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ना बेटा। तो डोंट गेट दिस हर्टन, कोई भी सवाल आता है थोड़ी देर आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करो और फिर आपको आंसर आ जाएगा। अब आंसर कैसा लिखना है ये क्वेश्चन को देख के पता चलेगा। गिव रीजन फॉर है, तुमको रीजन देना है। वुल यील्डिंग एनिमल्स हैव थिक फर, तो वुल यील्डिंग एनिमल्स आर फाउंड इन कोल्ड रीजन्स वेयर दे नीड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम सीवियर कोल्ड। For this, they have thick fur because air will be trapped in the fur, and we know that air is a bad conductor of heat, which will not allow its body heat to go into the surrounding, and it will feel comfortable. तो ऐसा है, क्वेश्चन तो सब आपको आता ही, सब आंसर है ना? ओके, तो लास्ट अभी बेटा 21 सितंबर से 9 to 12 के भैया दीदी लोग अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ, अगर पेरेंट परमिशन देंगे तो वो अपना डाउट क्लियर करने के लिए और कुछ सजेशन लेने के लिए आ सकते हैं स्कूल। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट का और क्या ऑर्डर आएगा उसको डिपेंड करेगा। आप लोग नहीं आ सकते अभी, आपके लिए सरकार ने ऐसा नहीं दिया नियम, अभी सिर्फ 9 to 12 के लिए ये है ना अपॉर्चुनिटी दिया है। ठीक है, जैसे आपके बारे में आएगा हमें इंफॉर्मेशन, हम आपसे शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखेंगे, पहले हम आपको भेजेंगे सब कुछ। जिनके भैया दीदी पढ़ते हैं 9 to 12 में, उन्होंने देखा होगा उनको एक फॉर्म भेजा गया है, उस फॉर्म के भर के वो स्कैन करके फिर भेज रहे हैं को, है ना? हाँ सर हमें ये वाले मार्क्स भी मेल पे मिलेंगे? इसके मार्क्स, हाँ मार्क्स बता दिए जाएंगे आपको, जैसे ग्रुप सर मेल पे मिलेंगे, मेल पे बताएं। देखते हैं जिस पे भेजना होगा मेल पे या व्हाट्सएप पे, तो जिंदाबाद है ना। गूगल फॉर्म नहीं है ना बेटा, ये तो मार्क्स कहीं ले सकते हैं हम। गूगल फॉर्म का स्कोर या तो मेल पे जाता है, अगर हम व्हाट्सएप भेजेंगे सबको चला, सबका स्कोर सबको मालूम चलेगा। सर इसके मार्क्स कहाँ जाएंगे? हाँ फिर से बोलो। सर डिस्क्रिप्टिव जो पेपर दिया है उसके मार्क्स हमारे मेल पर आएंगे क्या? उसके मार्क्स आपको बहुत जरूरी है पता करना, तो टीचर से पता कर सकते हो ना, सब्जेक्ट टीचर बता देंगे बेटा आपको। सर मेल पर नहीं, जरूरी नहीं मेल पर, आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे। जो आपका व्हाट्सएप है जिस पर आपने आंसर भेजा ना, हमें पीडीएफ बना के भेजे हो ना, उसमें आंसर मार्क्स ले देंगे आप चाहो तो, है ना? ऐसा कर सकते हैं, फोन करके बता देंगे, और क्या कर सकते हैं, जैसे कहो वैसा कर देंगे। सर कल से दूसरा चैप्टर, नया चैप्टर शुरू करना है। हाँ बेटा, अभी थोड़ा सा ये लास्ट चैप्टर का हम बात कर लें, है ना, जो हमने अभी थोड़ा पढ़ के छोड़ा था, ये वाला देखो, दिख रहा है स्क्रीन, देखो आप लोग प्रेजेंटेशन करेंगे। हाँ प्रेजेंटेशन भी करेंगे बीच बीच में, है ना। और आप लोग ग्रुप में प्रेजेंटेशन कर सकते हो, 2-3 बच्चे एक ग्रुप बना लो, 4 ग्रुप सकते हो, 4 स्टूडेंट्स मिलके एक स्लाइड बनाओ, आपस में स्लाइड बना के भेज दो, एक कंपाइल कर लेगा। ऐसे 4-4 लोग मिलकर एक ग्रुप बना लो और फिर प्रेजेंट करो आप लोग, थोड़ा पार्ट आप करो, थोड़ा आपका फ्रेंड करेगा, थोड़ा वो फ्रेंड करेगा, थोड़ा वो फ्रेंड करेगा, तो इस तरह से हम जल्दी हमारा काम हो जाएगा। करोगे ऐसा? सर अभी प्रेजेंट करते हैं ग्रुप, अभी अगला कल कर सकते हो एक ग्रुप। सर ग्रुप बना के कब प्रेजेंट करें? टुमारो कर सकते हो क्या? अगला नेक्स्ट वीक में करना चाहते हो? नेक्स्ट वीक सर मैंने तो बना ली। हाँ नेक्स्ट और ग्रुप बना लो बेटा, ग्रुप में किसी और को जोड़ लो साथ में, है ना।
So you present the presentation in the next week on Thursday itself. ग्रुप में करो, है ना, मेक अ ग्रुप। और इससे क्या होगा, फायदा होगा आपको ग्रुप बनाने से। आगे अगर हम कुछ ग्रुप में वर्क करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे, इसमें से लर्न भी कर पाएंगे, ग्रुप में काम करना शुरू करोगे तो। सर विजन मतलब क्या होता है? विजन विजन का मतलब होता है साइट, देखना, देखने की शक्ति। विजन, जैसे मैं देख रहा हूँ सामने, इसको बोलते हैं। दे हंट एट नाइट बिकॉज दे हैव लार्जर फील्ड ऑफ विजन। उनका विजन का फील्ड लार्ज होता है, दूर तक साफ साफ देख पाते हैं वो, इसलिए वो रात में शिकार कर पाते हैं, है ना। ओके, सो इसमें एलिफेंट का अच्छे से पढ़ लो बेटा। एलिफेंट, what are the adaptations in elephant due to which it can survive in the tropical rainforest? So elephant has a long trunk, है ना, इसके लंबी सूंड होती है। ये सूंड दो तरह से काम में लेता है, एक तो उससे सांस लेता है, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन काम में आता है, फिर नोज की तरह काम लेता है, एंड फॉर फूड, ये खाने के लिए, देखा होगा आपने, हाँ फूड। जू वगैरह में देखा होगा। अगर हाथ प्लीज खिला दो, उठाता किससे है वो? अपने अपने ट्रंक से उठाता है उसको, तो पिकअप करता है फूड को भी। एंड इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। कहते हैं हवा में बहुत दूर तक ये सूंड घुमा करके खतरे को भांप लेता है। फिर टस्क होते हैं इसके, मॉडिफाइड टीथ होते हैं, खाने काम में नहीं आते वो। दे यूज देम टू टियर द बार्क ऑफ द ट्री, और किसी ट्री के बार्क को फाड़ देते हैं और फिर उसको अच्छे से चबा चबा खाते हैं मस्त से, है ना, क्योंकि वहां पर फूड की स्कार्सिटी है। देयर आर मेनी एनिमल्स, so there is a tough competition for the food, so to meet that competition it can tear the bark of the tree with its tusk and eat its food. Its large ears, बड़े बड़े कान होते हैं, it can hear even soft sound as well as it can cool itself, पंखा कर लेता है। ऐसे देखना, हाथी को देखना ध्यान से, तो हाथी का वीडियो देखो यूट्यूब वगैरह पे, वो पंखा की तरह अपना फैन करता रहता है अपने कान से, अपनी बॉडी को कूल रखता है। क्योंकि हाथी को देखना आप, जनरली एलिफेंट्स आर ऑफ डार्क कलर्ड होते हैं, हाथी काले या डीप डीप कलर के होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना। सर इट ऑल्सो यूजेज ट्रंक टू, हाँ बोलो बेटा। सर यू आर सेंडिंग द लिंक फॉर गूगल फॉर्म फॉर रिवीजन। नहीं कोई देखो, कुछ नहीं, एक देखो वीडियो देखो ध्यान थोड़ा सा, है ना। Hopefully to start. A small video started or not? Started? Sir, it's almost time. Yes, sir. ओके बेटा, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट तो, है ना। नो सर 2 minutes are left. Sir 2 minutes are left. Do some questions बेटा, do some questions. If possible MCQ, some MCQ, if they open then okay, otherwise doesn't matter. या आ गया, खुल रहा है ना। You can answer MCQ. Yeah. And you can get these questions on Diksha app also. आप दीक्षा ऐप में भी सारे क्वेश्चन देख सकते हो। हाँ बेटा देखो क्वेश्चन। Continue.
इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इनको। चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे बेटा, है ना, टाइम इज ओवर आई थिंक। जैसे 2-4 सवाल करना चाह रहे थे, कर लेते। ओके लीव इट बेटा, है ना। ओके विल डू शांति पाठ, शांति पाठ एंड विल अटेंडेंस ले लूँ आपका। यस, स्टार्ट शांति पाठ। है ना, टुमारो विल लर्न न्यू चैप्टर। ठीक है बेटा, रेंस स्टॉर्म्स एंड थोड़ा पढ़ के आना बेटा, राइट, थोड़ा पढ़ के आना आप लोग भी। सर 8th चैप्टर ना